Hello students, I am your teacher for this lecture. In this lecture, we are going to do some subjective questions on the chapter matrices and determinants. Now, basically the subtopic on which we are going to do the questions would be solving a system of linear equations by determinant method or by matrix method. You know that we can solve a system of equations either by matrix method, in which we find inverse of a matrix first, or we can also solve a system of linear equations by determinant method, which is also called as Cramer's rule. So we will do some subjective questions to practice these concepts. All right. So let us begin now. So let's see the first question right here. So you can see the first question on your screen, which is, let a matrix A be given by, so matrix A we are given. We have to first of all evaluate this polynomial where I is unit matrix or identity matrix of order 2. That is the first part of the question. Then we have to obtain a matrix B which satisfies this condition. Now, which matrix satisfies this condition that AB is equal to BA is equal to identity matrix? Inverse. So that means next is to find inverse of A, and using this matrix B, which is inverse of A, we have to solve for X and Y this system of equations. Is it all right? So there are a few parts of this question. So let us begin the solution of this question. Now, first of all, let us take this matrix A, which is given to be. Entries are 2, 1, 3 and 4. Is it okay? Now, since in the polynomial we have to obtain 2A square, so let us first of all obtain matrix A square, in which you will multiply the given matrix by itself beta. So we have 2, 1, 3, 4 again. Now you know that to multiply these two matrices, first element in first row, first column, 4 plus 3 will be 7. Then this entry, first row, second column, 2 plus 4 will be 6. Then second row, first column, 6 plus 12 will be 18. And second row, second column, 3 plus 16 will be equal to 19. Is it all right? So this is matrix A square. 7, 6, 18, 19. Now we obtain this polynomial, which is the first part of the question. So let us denote it by part 1. So we need to obtain 2A square plus 3 times A and plus 5 times identity matrix. All right. Now look here. We have this as A square. So 2A square means multiplying each and every entry of A square by 2. So this matrix would come out to be 7 2s are 14, 6 2s are 12, 18 2s are 36, 19 2s are 38. Then we have to take 3 times matrix A. This is matrix A, so each and every entry will get multiplied by 3. So 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 4s are 12. Then identity matrix we have to take 5 times I. So every entry will get multiplied by 5. So we will have 5 0 0 5. Now you know that we can add these matrices because order is same, and to add them corresponding entries will be added. So we have 14 plus 6 is 20, 20 plus 5 is 25. 12 plus 3 plus 0 will come out to be 15. Then 36 plus 9 plus 0 will be 45. And then 38 plus 12 will be how much? 50 plus 5, that is equal to 55. So this is part 1 where we have to obtain this polynomial. Alright. तो ये polynomial matrix हमारा आ गया. Second part देखो question का ये था हमारा. In second part you had to obtain B which satisfies this condition that A into B is B into A is equal to identity matrix. अब देखो कौन सा matrix होता है जिसको A से multiply करने पे identity matrix मिले? That would be equal to inverse. तो इसका मतलब हो गया B will be equal to A inverse. अब देखो A inverse का फॉर्मूला क्या होता है? It is equal to 1 upon determinant of A multiplied by adjoint of A. So I am taking B to be equal to, now let us see what is determinant of A. यहीं पे हम इसके determinant की value निकाल लेते हैं. तो we have 8 minus 3 that is equal to 5. Is it all right? So determinant is equal to 5. So this is 1 upon 5.
नाउ लेट अस राइट एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. तो जैसे ये मैट्रिक्स आपका ए है, देखो, तो क्या करना होता है, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स आपस में बेटा इंटरचेंज करने होते हैं टू फाइंड द एडजॉइंट. तो 2 4 को इंटरचेंज कर लो, 4 2 आ जाएगा, और यहाँ पे यहीं पे रखे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के साइन क्या करने होते हैं, चेंज. तो ये -1 बनेगा एंड दिस विल बिकम -3. सो वी हैव 4 2 then -1 -3. So let's write 4 2 -1 and -3. Is it all right? So this is matrix B which is equal to A inverse. ये आ गया. तो this was the second part of the question. अगर आप चाहो तो 1/5 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो हर एंट्री को. अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं, where we are given system of equations and we have to solve. पहली इक्वेशन हमें दी है, देखो, 2x plus y is equal to 15. So first equation is 2x plus y is equal to 15. Second equation given is 3x plus 4y is equal to 23. Let's see, यही है ना, ये देखो 3x plus 4y is equal to 23. अब इसमें अगर हम इसको मैट्रिक्स मेथड से करते हैं, you know that first of all we form matrix A which is matrix of coefficients. x के कोफिशिएंट्स हैं 2 3, तो वो फर्स्ट कॉलम में आएंगे. y के कोफिशिएंट्स हैं 1 4, तो दे विल कम इन कॉलम 2. अब देखो ये जो मैट्रिक्स है 2 1 3 4, ये वही मैट्रिक्स है जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 1 3 4. तो उसका डिटर्मिनेंट 5 और उसका इनवर्स हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है. तो बेसिकली हमें इनवर्स चाहिए, तो इनवर्स इज दिस मैट्रिक्स. तो ये हम डायरेक्टली लिख लेते हैं कि A inverse will be equal to 1/5 4 -1 and -3 2. Is it okay? अब देखो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में एक मैट्रिक्स हम ये बनाते हैं मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स, दूसरा मैट्रिक्स बनेगा मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स विच आर x and y, और तीसरा मैट्रिक्स बनेगा मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स विच इज 15 23. एंड वी नो दैट ये वाला जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है इसको लिखा जा सकता है ax is equal to b. सॉल्व करने का मतलब है कि आपने x और y वेरिएबल्स निकालने हैं. दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड दिस मैट्रिक्स x. तो यहाँ पे x निकालने के लिए a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x विल कम आउट टू बी a इनवर्स इनटू b. नाउ वी हैव मैट्रिक्स a इनवर्स एंड वी हैव b. सो लेट अस राइट देम एंड मल्टीप्लाई. ऑलराइट, सो आई एम राइटिंग ओवर हियर. यहाँ पे देखो ध्यान से, तो x will be equal to 1/5. We have 4 -1 and -3 2. Let us multiply this matrix by b, जिसकी एंट्रीज है 15 23. So we write 15 23 over here. Got it? आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, इसका 2 क्रॉस 1, तो प्रोडक्ट डिफाइंड है और रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 1. और x देखो क्या था, x was this column matrix xy, isn't it? तो it was this. तो this is equal to 1/5 अभी बाहर रखते हैं. Let us multiply. तो ये हो जाएगा 15 4 60 -23. फिर लो -45 and +46. तो we are getting xy, लेफ्ट साइड पे जो हमारा मैट्रिक्स था बेटा, that is column matrix xy. दिस इज कमिंग आउट टू बी, अब आप देखो हर एंट्री मल्टीप्लाई होगी 1/5 से. इज इट ऑल राइट? सो दिस विल बी 37/5 एंड दिस इज 1/5. तो कंपेयर कर दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं अगर ऑर्डर सेम हो एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल. तो ऑर्डर तो सेम ही है 2 क्रॉस 1, एंट्रीज इक्वेट करो तो x इज 37/5 एंड वैल्यू ऑफ 5 विल बी 1/5. सो दिस कंप्लीट्स पार्ट 3 ऑल्सो. इज इट ऑल राइट? तो ये हमारे सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए जो हमें क्वेश्चन में देखो पूछे थे. तो पहले मैट्रिक्स पॉलिनोमियल निकालना था, देन वी हैड टू फाइंड दिस मैट्रिक्स B, all right, and then we have to solve for x and y, the given system of equations. Let's move on to the next question now. Look at question number 2. Question number 2 है find inverse of this matrix and hence solve this system of equations. अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन आपको यूजली बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार 6 मार्क्स का आया है. All right, तो look at this question carefully. So let us look at the solution of this question.
अब देखो सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए का इनवर्स निकालेंगे जो हमें कहा है। तो ए मैट्रिक्स ले लो पहले, व्हाट इट इज। फर्स्ट कॉलम है 7 10 6, सेकेंड है -1 -2 3 और -1 1 एंड -2। इज इट ओके? इनवर्स बेटा किसी मैट्रिक्स का तभी एग्जिस्ट करता है जब उसका डिटर्मिनेंट होता है नॉन जीरो। तो वी कैन एक्सपैंड बाय एनी रो और एनी कॉलम। सो यू कैन एक्सपैंड बाय रो 1, वी कैन टेक प्लस माइनस एंड प्लस। तो अगर आप इसको एक्सपैंड करते हो बेटा तो आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी -61, किसी भी रो या कॉलम से एक्सपैंड करेंगे। उसके बाद हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। इज इट ऑल राइट? इनवर्स निकालने के लिए अब एडजॉइंट ऑफ ए का देखो शॉर्टकट मेथड क्या था, एक बार रिकॉल करते हैं। पिछले कई मेथड्स में हमने इसको अप्लाई किया है। तो गिवन मैट्रिसेस को कॉलम वाइज एज इट इज लिख लो, 7 10 6 -1 -2 3 देन -1 1 -2। ठीक है, ये 1 था। फिर क्या करना होता है, जैसे दीज आर कॉलम 1 कॉलम 2, तो इनको रिपीट करेंगे हम यहाँ पे। तो कॉलम 1 विल बी 7 10 6, कॉलम 2 हमारा आएगा -1 -2 एंड 3। अब ये पूरी रो आपकी रो 1 है तो इसको हम रिपीट करेंगे और ये रो 2 है। सो नाउ वी आर गोइंग टू रिपीट रो 1 एंड रो 2। रो 1 के देखो एलिमेंट्स हैं 7 -1 -1 7 -1 और रो 2 के एलिमेंट्स हैं 10 -2 देन 1 10 -2। इज इट ऑल राइट? ये हो गया। इसके बाद एडजॉइंट निकालने के लिए आपको याद होगा वी डिलीट फर्स्ट रो एंड वी डिलीट फर्स्ट कॉलम। नाउ वी कैन डायरेक्टली राइट एडजॉइंट ऑफ ए। इज इट ऑल राइट? तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए मैट्रिक्स, तो वो हम डायरेक्टली अब यहाँ पे देखो कैसे लिखने वाले हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे, 4 - 3 इज 1। फिर चलेंगे रो वाइज, लिखेंगे कॉलम वाइज। सो वी हैव 6 + 20 दैट इज 26। इज इट ओके? तो देखना रो वाइज है, लिखना कॉलम वाइज है, क्योंकि आपको याद होगा कि एडजॉइंट कैसे लेते हैं, हर एलिमेंट का कोफैक्टर और फिर उसका ट्रांसपोज। तो आप चाहो तो यहाँ पे हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल के, ठीक है, जैसे ये बोल रही हूं मैं, we can also obtain adjoint of A by using this कि we write cofactor of each and every element C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33 और फिर उसका लेना है ट्रांसपोज। इज इट ऑल राइट? तो इससे भी निकाल सकते हो, जिसमें आपको पता है Cij की डेफिनेशन होती है -1 raised पर I plus j into corresponding minor. Let me write to you over here. ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज लेना होता है। अब आपको पता है जब ट्रांसपोज लेते हैं तो रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज होते हैं, तो इसीलिए इस मेथड में हम डायरेक्टली एडजॉइंट लिखने के लिए बेटा देख रो वाइज रहे हैं और लिख रहे हैं कॉलम वाइज, सो दैट ट्रांसपोज ना निकालना पड़े। तो अगली एंट्री देखो यहाँ पे, दिस इज 30 + 12 विच विल बी इक्वल टू 42। इज इट ओके? आगे चलते हैं। दिस -3 -2 will be -5. Similarly, we will write the other entries which will come out to be -8 -27. ये आपकी रो वाइज हमने देखा और लिख दिया कॉलम वाइज। सिमिलरली आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देख रो वाइज रहे हैं, लिखेंगे कॉलम वाइज, we will get -3 -17 -4, ये आ जाएगा। Is it all right? अब हम निकालते हैं A इनवर्स। तो A इनवर्स was 1 / determinant of A into adjoint of A। तो XC डायरेक्टली निकाल लो, ठीक है। तो A इनवर्स ये था, तो X was equal to A इनवर्स into B। दैट मीन्स मैट्रिक्स X जो हमें निकालना है वो देखो क्या होगा। अच्छा, पहले इन्होंने इनवर्स निकालने के लिए बोला है, लेट मी राइट द इनवर्स फर्स्ट बेटा, ठीक है ना। क्वेश्चन का पहला पार्ट इनवर्स निकालना था तो वो पहले लिख लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको याद होगा, हमने कहा था ये है -61। लुक हियर, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट वाज -61। सो अब हम ये एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स लिखते हैं, 1 26 42, देन वी हैव -5 -8 -27 -3 -17 एंड -4। दिस कंप्लीट्स पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन। उसके बाद अगला पार्ट क्वेश्चन का है कि सॉल्व करो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इज इट ऑल राइट? तो लेट मी राइट द इक्वेशंस हियर। तो पहली इक्वेशन हमें देखो ये दी है 7x
minus y minus z is equal to 0. Second equation is 10x minus 2y plus z is equal to 8. And third equation is 6x plus 3y minus 2z is equal to 7. अब आपको पता है इन इक्वेशंस को आप मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हो, जिसमें ए मैट्रिक्स होगा हमारा मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स. पहला कॉलम होता है x के कोफिशिएंट्स विच आर 7, 10, 6. सेकेंड कॉलम होंगे y के कोफिशिएंट्स -1, -2 एंड 3. फिर z के कोफिशिएंट्स -1, 1 एंड -2. इज इट ओके? देन वी राइट द मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स x. तो वेरिएबल्स का कॉलम मैट्रिक्स हो गया x, y, z, क्योंकि इनमें 3 वेरिएबल्स हैं x, y, z. फिर आपको पता है हम मैट्रिक्स लेते हैं मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स विच इज अगेन अ कॉलम मैट्रिक्स. तो कांस्टेंट्स हैं 0, 8, 7. गॉट इट? ये अब देखो सॉल्व करने के लिए दिस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज a इंटू एक्स इज इक्वल टू b. तो x निकालना है तो इट विल बिकम a इनवर्स इंटू b. अब आप नोटिस करो ये जो मैट्रिक्स है हमारा 7, 10, 6, -1, -2, 3, -1, 1, -2, it is the same matrix which is given in the question. तो जो हमारा कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स बन रहा है वो यही है. तो इन्हीं का इनवर्स हमें निकालना था a का, जो हम देखो ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं. तो लेट मी राइट दिस डायरेक्टली. So a inverse is -1/61 multiplied by this matrix. देखो इसकी एंट्रीज क्या थी, क्या आया था हमारा एडजॉइंट ऑफ a. It was 126, 42. Then we had -5, -8, -27. Then -3, -17 and -4. और मल्टीप्लाई करना है b से जो हमारा कॉलम मैट्रिक्स है 0, 8, 7. गॉट इट? अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, इसका 3 क्रॉस 1. प्रोडक्ट अलाउड है और मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 1. तो दिस विल बी इक्वल टू -1/61. लेट अस मल्टीप्लाई. ठीक है, फर्स्ट रो को करो फर्स्ट कॉलम से. सो यू विल हैव 0, -8 5 40 और -7 3 21. सेकेंड रो को करो, वी हैव 0, -64 -119. थर्ड रो को करो बेटा कॉलम से, वी हैव 0, देन वी हैव -216 एंड -28. ऑल राइट. अब देखो ये हो गया -1/61. दिस विल बी इक्वल टू -61 -183 एंड -244. गॉट इट? अब ये देखो x है. x वॉज दिस कॉलम मैट्रिक्स. लेट मी राइट दिस ओवर हेयर. इट वॉज x, y, z. अब देखो राइट साइड पे ये मैट्रिक्स इस स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहा है -1/61. तो every entry will get multiplied by -1/61. So we are going to get matrix on the right side as 1, 3 and 4. ये आ जाएगा. अब दो मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं? एक तो जब ऑर्डर सेम हो. दोनों को ऑर्डर सेम है 3 क्रॉस 1, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होनी चाहिए. लेट्स इक्वेट द एंट्रीज. सो वी गेट x इक्वल टू 1, y equal to 3 and z equal to 4. Is it all right? So this is the solution of given system of equations. All right? तो पहले हमें निकालना था a इनवर्स, जो कि इसके लिए हमने एडजॉइंट निकाला बेटा, और फिर वही मैट्रिक्स जो था मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स था. तो यूजिंग दैट वी हैड टू फाइंड the solution of these system of equations by matrix method. All right? तो मैट्रिक्स मेथड में आपने देखा एडजॉइंट निकालते हैं, उसको यूज करके इनवर्स निकालते हैं. फिर x जो होता है आपका जो मैट्रिक्स वेरिएबल वाला होता है दैट इज a इनवर्स इनटू b. गॉट इट? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. ठीक है, अब देखो इसमें आपको कहा है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय क्रैमर्स रूल. क्रैमर्स रूल मतलब वी हैव टू यूज डिटर्मिनेंट मेथड. सो लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. अब देखो इसमें पहले इक्वेशंस क्या दी हैं. We are given 2/x plus 3/y is equal to 2 and second equation is 5/x plus 8/y is 31/6. एक काम करते हैं, देखो क्योंकि हमारे पास अभी ये वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में है तो वी कैन टेक वन सब्सटीट्यूशन. लेट 1/x be equal to कैपिटल X और मान लो 1/y है कैपिटल Y.
अब देखो आपके पास इक्वेशंस ये बन गई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 31 अपॉन 6. क्योंकि इसको हमने क्रैमर्स रूल से करना है, दैट मीन्स वी हैव टू डू इट बाय डिटर्मिनेंट मेथड. तो उसमें पहला डिटर्मिनेंट हम बनाते हैं डेल्टा, जिसमें आपके पास x के कोफिशिएंट्स आएंगे और y के. तो कॉलम 1 इज 2 5 एंड दिस इज 3 8. इसकी वैल्यू निकाल लो 16 माइनस 15 विच इज इक्वल टू 1. देन वी फाइंड मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट डेल्टा 1. डेल्टा 1 या डेल्टा x किसी से भी डिनोट कर सकते हो. इसमें कॉलम 1 जो कि x के कोफिशिएंट्स हैं, दे आर टू बी रिप्लेस्ड बाय कांस्टेंट्स. सो दिस इज 231 by 6 and then column 2 will remain as it is. ये हो जाएगा आपका 16 minus this into this will be 31 upon 2. So on solving we will get 1 upon 2. Then let us write delta 2. delta 2 में क्या करना होता है, जो y के कोफिशिएंट्स हैं उनको रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट से, x के कोफिशिएंट्स एज इट इज आएंगे. सो वी हैव 2 5 और कांस्टेंट्स हैं 231 by 6. Let us solve it. This into this will be 31 upon 3 and then we have minus 10, so it will be 1 upon 3. अब देखो x क्या होता है. वैल्यू ऑफ x कैपिटल X हमने लिया था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू ऑब्टेन कैपिटल X, क्योंकि ये वाली देखो जो इक्वेशंस है ना, इसका सॉल्यूशन अब हम देख रहे हैं. इज इट ऑल राइट? डिटर्मिनेंट मेथड से. तो क्या होता है ये देखो, एक तो ये देखो कि इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो है, तो इसका मतलब सोल्यूशन कैसा होगा, यूनिक. सो वी विल हैव यूनिक सोल्यूशन. और वो यूनिक सोल्यूशन मिलता कैसे है, फॉर्मूला ये होता है x इज इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा एंड y इज इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा. अब सॉरी, यहाँ भी कैपिटल X कैपिटल Y लेना है पहले, क्योंकि जो हमारी फाइनल इक्वेशंस थी उनमें पहले ये था बेटा, फिर हम स्मॉल x स्मॉल y निकाल लेंगे. डेल्टा 1 इज कमिंग आउट टू बी 1 by 2 और डेल्टा की वैल्यू 1 आई है, तो कैपिटल X इज 1 by 2. डेल्टा 2 आप देख सकते हो जैसे 1 by 3 है, डेल्टा की वैल्यू 1 आई थी, तो इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 3. अब हमने x को क्या लिया था, देखो 1 upon x was capital X, 1 upon y was capital Y. That means we have got 1 upon x is equal to 1 upon 2 and we have got 1 upon y to be equal to 1 upon 3. So that means we get x is equal to 2 and y is equal to 3. So this is the solution of given system of equations by using Cramer's rule. Is it all right? तो ये question था. Let's move on to the next question now. Look at now question number 4. अब देखो इसको जरा ध्यान से. Consider the system of linear equations in x, y, z. आपको 3 equations दी हैं. You have to find the values of theta for which this system has non-trivial solutions. अब आपको याद होगा non-trivial solutions या trivial solutions टाइप की टर्म हम यूज करते हैं तभी अगर सिस्टम इज होमोजीनियस. इज इट ऑल राइट? तभी ये टर्म्स बेटा हमारी यूज होती हैं. अब आप नोटिस करो, इसमें आप देख रहे हो हर टर्म की डिग्री 1 है, कांस्टेंट 0 है, तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज होमोजीनियस. तो लेट अस नाउ डू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन बेटा. सो करते हैं सॉल्यूशन ऑफ इट. Firstly, I will write the equations. So, पहली equation है आपकी sin 3 theta into x minus y and plus z is equal to 0. Second equation is cos 2 theta into x plus 4y and plus 3z is equal to 0. This is 4, right? फिर उसके बाद third equation है 2x plus 7y plus 7z is equal to 0. अब आप नोटिस करो क्योंकि कांस्टेंट्स हमारे 0 हैं तो सिस्टम कैसा है, होमोजीनियस. और होमोजीनियस सिस्टम में बेटा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. तो वो तब होते हैं जब आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू डेल्टा की 0 होती है. व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x, y and z. x के कोफिशिएंट्स लो, सो कॉलम वाइज लिखेंगे
साइन 3 थीटा कॉस 2 थीटा 2। फिर y के कोफिशिएंट्स लेते हैं, देखो ये रहे। सो वी हैव -1, 4 एंड 7। फिर लो z के कोफिशिएंट्स 1, 3, 7। तो डेल्टा की वैल्यू होगी 0। वाई 0? बिकॉज सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस, राइट। अब देखो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बनेगी, फिर सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो ये है ना, फाइंड वैल्यूज ऑफ थीटा। अब देखो इस डिटर्मिनेंट में अगर आप चाहो तो ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई कर सकते हो, वरना डायरेक्टली भी एक्सपैंड कर सकते हो। लेट अस एक्सपैंड बाय कॉलम 1। कॉलम 1 से एक्सपैंड कर रहे हो तो प्लस माइनस और प्लस। लेट्स सी व्हाट डू वी गेट। वी हैव साइन 3 थीटा, लीव फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, वी हैव 28 माइनस 21। फिर माइनस कॉस 2 थीटा, लीव सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, वी हैव -7 माइनस 7। देन प्लस 2, लीव फर्स्ट रो first column and third row, so we have -3 minus 4, it is equal to 0. So we are getting 7 sin 3 theta minus minus plus 14 cos 2 theta and minus 14 is equal to 0. So you can easily see that we can divide this equation by 7. Got it? तो equation आ गई हमारी sin 3 theta plus 2 cos 2 theta and minus 2 is equal to 0. अब इसमें दो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, sin 3 theta and cos 2 theta. बिकॉज एंगल इज नॉट सेम, तो इसलिए हमें इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ अ सिंगल रेशो। तो देखो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ साइन एज, फॉर्मूला याद होने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री के सारे किसी भी चैप्टर में देखो यूज हो जाते हैं। सो वी हैव 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब क्योंकि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला हमने साइन थीटा की टर्म्स में लिखा है, दैट इज वाई कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला भी हम वो वाला यूज करेंगे विच इज ओनली इन टर्म्स ऑफ साइन। सो दैट इज 1 माइनस, ये देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। एंड देन वी हैव -2 इक्वल टू 0। तो हमने अप्लाई किया साइन 3 थीटा का ये फॉर्मूला और कॉस 2 थीटा का ये फॉर्मूला। अब रेशो सेम आ जाती है बेटा जब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, तो सॉल्व करना बहुत सिंपल हो जाता है। सो वी आर गेटिंग दिस ऑन सॉल्विंग एज -4 साइन क्यूब थीटा, देन वी हैव -4 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखो अगली टर्म ये आएगी -4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। 2 और -2 कैंसिल हो जाएगा। So we take minus sin theta common. If you take minus sin theta common, we are left with 4 sin square theta plus 4 sin theta and minus 3. This is equal to 0. अब देखो ये equation factorize हो गई. Either this factor will be 0 or this will be equal to 0. पहला केस लेते हैं जब sin theta 0 है, तो sin theta in general 0 होता है when theta is integral multiple of pi, that is theta is n pi and n is any integer. तो एक सेट ऑफ सॉल्यूशन हमारा ये आ गया। दूसरा सेट आएगा बेटा इस फैक्टर को 0 पुट करके। सो लेट अस पुट इट इक्वल टू 0। सो वी हैव 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा एंड -3 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं टू फैक्टराइज। So we can write it as 4 sin square theta plus 6 sin theta minus 2 sin theta and -3 is equal to 0. In the first two terms, 2 sin theta is common. We are left with 2 sin theta plus 3. Then we have -1 common. Again we have 2 sin theta plus 3 is equal to 0. अब फैक्टर्स बन गए देखो, तो क्या फैक्टर्स हैं? पहला फैक्टर हो गया 2 sin थीटा प्लस 3 और सेकेंड फैक्टर है 2 sin थीटा -1 इज 0। अब या तो हमारा ये फैक्टर 0 होगा या फिर ये। पहले फैक्टर को 0 पुट करके बेटा sin थीटा की वैल्यू आ रही है -3/2
और दूसरे फैक्टर को 0 पुट करके साइन थीटा इज कमिंग आउट टू बी 1/2. नाउ यू नो दैट फर्स्ट वाला केस हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, है ना? क्यों? देखते ही आपको पता चलना चाहिए. रीजन ये है कि साइन थीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to 1. तो -3/2 is smaller than -1, तो sin theta cannot take this value. That means we have sin theta is equal to half. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक एंगल जहां पे sin वैल्यू हाफ लेता है that is π/6. तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन गई. अब आपको पता है अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती है sin theta is equal to sin alpha, its general solution is given by n pi plus -1 raised power n into alpha, where n is any integer. Is it all right? तो ये इसका जनरल सोल्यूशन होता है. तो लेट अस अप्लाई दिस. तो ये जनरल सोल्यूशन हम यहाँ अप्लाई करते हैं. तो दैट मीन्स वी गेट थीटा टू बी इक्वल टू n pi plus -1 raised power n multiplied by π/6, where n is any integer. So this is the second set of solution. तो देखो दो सेट्स हमारे आंसर आ गए. तो फाइनल आंसर हम ऐसे लिखेंगे, आपको थीटा की वैल्यूज पूछी थी, तो एक हो गया n pi and other is n pi plus -1 raised power n into π/6, where n is any integer. तो ये दो सॉल्यूशंस नहीं बेटा, दो सेट ऑफ सॉल्यूशंस हैं, क्योंकि जैसे जैसे n को वेरी करोगे दोनों सेट्स में अलग अलग आपको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे. इज इट ऑल राइट? तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें डिटर्मिनेंट हमारा जो बना दैट वाज इन टर्म्स ऑफ थीटा. तो सॉल्व करने के लिए जो इक्वेशन आई दैट वाज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फॉर विच वी रिक्वायर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज. ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. लुक एट क्वेश्चन नंबर 5. We have to find all integers k for which this system of equations has a unique solution. और कहा है find a solution for k equal to 0. फिर अगर k पर्टिकुलर वैल्यू 0 ले रहा है तो सोल्यूशन निकालना भी है. तो let us begin solution of this question. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. अब देखो सबसे पहले तो इक्वेशंस लिखते हैं जो हमें गिवन है. फर्स्ट इक्वेशन इज x plus 2y minus 3z is equal to 1. Second equation is 2x minus ky and minus 3z is equal to 2. And the third equation is x plus 2y plus k times z is equal to 3. तो सबसे पहले तो आपको वो k की वैल्यूज चाहिए जिसके लिए सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन है. आप देखो यूनिक सॉल्यूशन तब होता है जब इसमें डेल्टा की वैल्यू होती है नॉन जीरो. अगर हम डिटर्मिनेंट मेथड की बात करते हैं बेटा तो उसमें यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन हमारी ये होती है कि डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. मैट्रिक्स मेथड में भी सेम ही कंडीशन होती है. उसमें कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स बनाते हैं तो कंडीशन होती है कि कॉरस्पॉन्डिंग उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो. तो डेल्टा वही डिटर्मिनेंट है देखो कोफिशिएंट्स का. तो x के कोफिशिएंट्स आर 1 2 1. फिर y के कोफिशिएंट्स लो 2 माइनस k 2 और फिर -3 एंड देन k. सो दिस डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0. अब देखो आप इसको डायरेक्टली भी एक्सपैंड कर सकते हो, ठीक है, या चाहो तो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर लो. वी कैन टेक प्लस माइनस एंड प्लस. इज इट ओके? तो अगर आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हो यू विल बी गेटिंग ऑन सॉल्विंग, किसी भी रो या कॉलम से एक्सपैंड कर लो, वी विल गेट k स्क्वेयर प्लस 7k प्लस 12 इज नॉट इक्वल टू 0. ये आ जाएगा. इसमें अगर आप मिडिल टर्म करके फैक्टराइज करते हो वी हैव टू फैक्टर्स एज k प्लस 3 इंटू k प्लस 4 विच आर नॉन जीरो. तो अगर नॉन जीरो है तो k दोनों में से ना तो k प्लस 3 जीरो होना चाहिए ना k प्लस 4. तो k प्लस 3 शुड बी नॉन जीरो एंड साइमल्टेनियसली k प्लस 4 भी होना चाहिए नॉन जीरो. तो इसका मतलब k शुड नॉट बी इक्वल टू -3 एंड -4. अब देखो क्वेश्चन का पहला पार्ट था फाइंड ऑल इंटीजर्स के, वो सारे फाइंड करने हैं. तो यहाँ पे k की वैल्यू अगर हमें पूछी गई है तो हम ये बोलेंगे k बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट दीज टू -3 एंड -4.
तो ये वैल्यूज हैं जो k ले सकता है. इज इट ऑल राइट? कौन सी वैल्यूज बेटा? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -3 एंड -4. क्यों? क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन थी कि k होना चाहिए नॉन जीरो, डेल्टा होना चाहिए नॉन जीरो. ऑल राइट, तो ये तो यूनिक सॉल्यूशन की ये कंडीशन हमने अप्लाई कर दी. अब देखो अगला पार्ट क्वेश्चन का क्या है कि फाइंड करो सॉल्यूशन अगर इन इक्वेशंस में k जीरो है. तो k जीरो है तो ये जीरो हो गया और ये जीरो हो गया. तो हम जरा इक्वेशंस दोबारा लिखते हैं. देखो अब k इज इक्वल टू जीरो इज गिवन. सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का कर रहे हैं कि k अगर जीरो है. देखो अगर k जीरो है, फर्स्ट इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, वो एज इट इज रहेगी क्योंकि उसमें k है नहीं. x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 1. सेकेंड इक्वेशन में हो जाएगा 2x माइनस 0 इंटू वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 2. एंड थर्ड इक्वेशन विल बिकम x प्लस 2y प्लस 0 इंटू z इज इक्वल टू 3. तो अब आपको इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करना है. तो लेट अस यूज डिटर्मिनेंट मेथड. तो इसमें हम पहले निकालते हैं डेल्टा. देखो क्या आ गया. डेल्टा में कोफिशिएंट्स लो. x के पहले 1 2 1, देन वी हैव 2 0 2 और फिर है बेटा -3 एंड 0. ये आ जाएगा डेल्टा. इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसी भी रो या कॉलम से एक्सपैंड कर लो बेटा, ये आ जाएगी -12 जो कि नॉन जीरो है. मतलब दिस सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन. ठीक है ना. डेल्टा नॉन जीरो है तो कैसा सॉल्यूशन होता है? यूनिक. अब हम लेते हैं डेल्टा 1. सॉल्यूशन निकालना भी तो है. तो उसके लिए आपको पता है x के जो कोफिशिएंट्स होते हैं, मतलब कॉलम 1 इज रिप्लेस्ड बाय कॉलम ऑफ कांस्टेंट्स. तो पहला कॉलम आ जाएगा 1 2 3. बाकी के कॉलम्स वही रखेंगे 2 0 2 -3 0. If you solve value of this determinant, this will come out to be -24. किसी भी रो या कॉलम से एक्सपैंड कर सकते हो. अब हम लिखते हैं डेल्टा 2. अब देखो जैसे डेल्टा 1 में हमने कॉलम 1 को रिप्लेस किया है बाय कॉलम ऑफ कांस्टेंट्स. सिमिलरली डेल्टा 2 में हम y के कोफिशिएंट्स वाला कॉलम, मतलब कॉलम 2 जो है ये वाला, इसको रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट से. तो फर्स्ट कॉलम 1 2 1 एज इट इज आएगा, थर्ड कॉलम भी एज इट इज आएगा और ये जो मिडिल कॉलम है ये कांस्टेंट से रिप्लेस हो जाएगा 1 2 एंड 3. तो अगेन यू कैन सॉल्व एंड वैल्यू विल कम आउट टू बी -6. ठीक है. डेल्टा 2 की वैल्यू सॉल्व करके आएगी -6. नाउ लेट अस राइट थर्ड डिटर्मिनेंट दैट इज डेल्टा 3. तो डेल्टा 3 अब हम लिखेंगे. देखो अब देखो जैसे कॉलम डेल्टा 2 में कॉलम 2 कांस्टेंट से रिप्लेस किया था, अब हम कॉलम 3 रिप्लेस करेंगे. तो कॉलम 1 डेल्टा वाला ओरिजिनल लो 1 2 1, इवन कॉलम 2 भी सेम 2 0 2. तो लेट अस राइट 1 2 1 2 0 2 और ये कांस्टेंट से रिप्लेस होगा 1 2 3. ठीक है ना, ये कांस्टेंट से. तो अगेन यू कैन एक्सपैंड बाय एनी रो और एनी कॉलम. यू विल गेट दिस वैल्यू टू बी इक्वल टू -8. इज इट ऑल राइट? ये हो जाएगा. अब देखो क्योंकि डेल्टा नॉन जीरो था, ठीक है ना, यहाँ पे देखो डेल्टा की वैल्यू हमारी आई है -12 जो कि नॉन जीरो है. तो हमने कहा यूनिक सॉल्यूशन होगा. अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है तो वो यूनिक सॉल्यूशन होता क्या है बेटा? हाउ डू वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड? सॉल्विंग का मतलब तो यही है ना, जो उसमें वेरिएबल्स हैं उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. तो x की वैल्यू होती है डेल्टा 1 बाय डेल्टा. डेल्टा 1 की वैल्यू आई है हमारी कितनी? -24 और डेल्टा है -12. तो x की वैल्यू आ गई 2. y विल बी इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा. डेल्टा 2 की हमने वैल्यू निकाली -6 अपॉन -12. दैट मीन्स वैल्यू ऑफ y इज 1 अपॉन 2. देन वी नीड टू फाइंड z विच विल बी डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा. डेल्टा 3 इज -8 अपॉन -12 which will be equal to 2 upon 3. So that means we get solution as, ये देखो solution ये आ गया आपका. अगर k 0 है तो जो system of equations बना था उसका solution है x is equal to 2, y is equal to half and then z is equal to 2 by 3. Got it? So this is the solution of system of equations. Clear हो गया बेटा? तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5. Got it?
Let's move on to the next question. Now let us look at question number 6. इसमें कहा है for what values of m does these two equations has a solution which satisfy this condition कि x भी पॉजिटिव है and y is also positive. तो देखो इस क्वेश्चन का अब सॉल्यूशन. पहले तो देखो इक्वेशंस लिख लेते हैं. फर्स्ट इक्वेशन हमें दी है 3x plus my is equal to m. Second equation is 2x minus 5y is equal to 20. Got it? तो we have two equations and two unknowns. अब इसमें पहले सोल्यूशन निकालेंगे और फिर यूज करेंगे. सोल्यूशन का मतलब x और y की वैल्यूज वो m की टर्म्स में आएंगी. तो आप निकाल के यूज करोगे कि दोनों पॉजिटिव हैं, उससे आपको इनइक्वालिटी मिलेगी जो m सेटिस्फाई करेगा. तो लेट अस यूज अगेन डिटर्मिनेंट मेथड. कोई भी आप अप्लाई कर सकते हो, मैट्रिक्स मेथड भी, ठीक है, या डिटर्मिनेंट मेथड. तो वी हैव डेल्टा इक्वल टू पहला कॉलम x के कोफिशिएंट्स 3 2, दूसरा कॉलम y के कोफिशिएंट्स m माइनस 5. तो दिस इज माइनस 15 माइनस 2m. गॉट इट? अब हम लेते हैं डेल्टा 1. डेल्टा 1 में आपको पता है जो x के कोफिशिएंट्स हैं दे आर टू बी रिप्लेस्ड बाय कांस्टेंट्स. तो ये रिप्लेस होंगे m20 से. दिस इज m माइनस 5. गॉट इट? तो ये हमने कॉलम 1 को रिप्लेस किया है कांस्टेंट से. इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू देखो माइनस 5n माइनस 20m, तो माइनस 25m. फिर लेते हैं हम तीसरा डेल्टा 2. डेल्टा 2 में देखो x के कोफिशिएंट्स वही रहेंगे 3 2, y के कोफिशिएंट्स रिप्लेस होंगे कांस्टेंट से विच इज m20. तो इसमें हमने कॉलम 2 को किया है रिप्लेस. अब देखो सॉल्व कर लेते हैं. दिस इज 60 माइनस 2m. तो ये आ गया हमारे पास 60 माइनस 2m. अब आप इसका सोल्यूशन निकालोगे. लेट अस फाइंड द सोल्यूशन नाउ. सोल्यूशन में x इज गिवन बाय डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा. अब देखो डेल्टा 1 है माइनस 25m और ये है माइनस 15 माइनस 2m. माइनस माइनस कैंसिल करते हैं तो x इज कमिंग आउट टू बी 25m अपॉन 2m प्लस 15. और आपको दिया है x इज ग्रेटर देन 0. दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन. ऑलराइट, कि जो सोल्यूशन है वो x उसमें पॉजिटिव है. तो x की वैल्यू पुट करते हैं. m के ऊपर रैशनल इनइक्वालिटी आ जाएगी जो कि आपको सॉल्व करनी आती है. तो लुक हियर, इनइक्वालिटी बन गई 25m अपॉन 2m प्लस 15 इज ग्रेटर देन 0. 25 से बेशक डिवाइड कर दो. सो वी हैव m अपॉन 2m प्लस 15 इज पॉजिटिव. अब देखो न्यूमिरेटर का रूट क्या है? 0. न्यूमिरेटर को 0 पुट करेंगे तो कब होगा? जब m 0 है. और डिनोमिनेटर का रूट है माइनस 15 बाई 2. इज इट ऑल राइट? अब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो दोनों ही नहीं लेने, दोनों के ऊपर ब्लैंक सर्कल्स आएंगे. तो वी हैव माइनस 15 बाई 2 0. वी पुट ब्लैंक सर्कल्स. देन वी टेक प्लस माइनस एन प्लस. अब क्योंकि इनइक्वालिटी देखो ये है जिसमें ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब वो आंसर होगा जिसमें प्लस वाला साइन है. तो इसका मतलब या तो आप m को ले सकते हो माइनस 15 बाई 2 से छोटा, और यू कैन टेक m टू बी ग्रेटर देन 0. तो केस 1 में तो ये हो गया कि m इज लेस देन माइनस 15 बाई 2 और m इज ग्रेटर देन 0. राइट, ये आ गया. अब हम सॉल्व करते हैं केस y की वैल्यू. ये हमने x निकाला. देखो x हमारा होता है एज यू कैन सी डेल्टा 1 बाय डेल्टा. राइट, इसको यूज करके हमने फाइंड आउट किया है. अब इसी तरह से y निकालते हैं और देखो y के ऊपर भी सेम कंडीशन है कि y इज पॉजिटिव. लेट्स फाइंड y नाउ. y इज इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा. अब देखो डेल्टा 2 की वैल्यू क्या है? यहां पे देखो इट इज 60 माइनस 2m. सो लेट मी राइट हियर 60 माइनस 2m एंड डिवाइडेड बाय डेल्टा जो कि था हमारा कितना? माइनस 15 माइनस 2m. इसमें भी ऊपर नीचे माइनस साइन पहले कैंसिल कर दो. तो y आ गया 2m माइनस 60 डिवाइडेड बाय 2m प्लस 15. इज इट ओके? अब हम यूज करते हैं कि y इज ग्रेटर देन 0. दिस कंडीशन इज गिवन टू अस.
सो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ y ताकि m की टर्म्स में रैशनल इनइक्वालिटी आ जाए बेटा. सो वी हैव 2m minus 60 divided by 2m plus 15 is greater than 0. अब देखो रैशनल इनइक्वालिटी है, न्यूमरेटर कहाँ पे 0 होगा? जब m हमारा है 30 और डिनोमिनेटर तो सेम ही है, तो इट विल बी 0 व्हेन वैल्यू ऑफ m इज -15/2. Let's plot these roots on the number line. So we have -15/2 and 30. ठीक है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो वी विल हैव ब्लैंक सर्कल्स, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. अब देखो फिर से, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है तो प्लस वाला रीजन आंसर लेना है, तो ये वाला रीजन या फिर ये वाला रीजन. इसका मतलब हो गया या तो m लेस देन है -15/2 के या फिर m इज ग्रेटर देन 30. तो ये आई है हमारी कंडीशन अगर हमने लिया y शुड बी ग्रेटर देन 0. अब देखो दोनों बातें इकट्ठी ट्रू चाहिए हमें क्वेश्चन में. वी नीड, लुक हियर इन द क्वेश्चन, x पॉजिटिव एंड y पॉजिटिव. तो ये दोनों बातें इकट्ठी ट्रू होनी चाहिए. x पॉजिटिव कब है देखो, ये रहा. इफ आइदर m इज लेस देन -15/2 और m इज पॉजिटिव, और ये है, इनको नाम दे देते हैं. सपोज दिस इज 1 और ये कंडीशन है बेटा 2. तो दोनों का लेंगे कॉमन सोल्यूशन क्योंकि दोनों कंडीशंस साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होनी चाहिए. तो लेट अस नाउ टेक कॉमन सोल्यूशन ऑफ 1 and 2. ऑलराइट, देखो यहां पे हम बात कर रहे थे किन किन नंबर्स की, -15/2, देन वी आर टॉकिंग अबाउट 0 एंड देन 30. पहली कंडीशन थी या तो m -15/2 से छोटा हो या 0 से बड़ा, जब x पॉजिटिव था. ये कंडीशन हमने ली है जब x पॉजिटिव था. जब y पॉजिटिव है तो कंडीशन ये है या तो m -15/2 से छोटा या फिर m शुड बी ग्रेटर देन 30. तो जिसके ऊपर डबल लाइन आ रही है वो कॉमन सोल्यूशन हो जाएगा. तो फाइनल आंसर हमारा ये आ गया कि m बिलोंग्स टू -∞ से -15/2 एंड देन यूनियन ओपन इंटरवल 30 to ∞. क्योंकि देखो यही पार्ट आएगा ना, इससे पहले का पार्ट आएगा नंबर लाइन पे और इससे बाद का आएगा, इसी के ऊपर डबल्स लाइन है. तो या तो m -15/2 से छोटा या 30 से बड़ा. सो दिस इज गोइंग टू बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. गॉट इट? तो कुछ नहीं है, सिर्फ आप डिटर्मिनेंट मेथड या किसी भी और मेथड, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर लो, x और y निकाल लो और यूज करो कि दोनों पॉजिटिव हैं. रैशनल इनइक्वालिटीज आएंगी विच यू कैन सॉल्व. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Now let's see question number 7. For what values of p and q the system of equations has no solution, unique solution, infinitely many solutions. अब देखो इस क्वेश्चन में आपको तीनों केसेस पूछे हैं, right? So let us now look at solution of this question. Let us write the three equations first of all. The first equation is 2x plus py plus 6z is equal to 8. The second equation is x plus 2y plus qz is equal to 5. And the third equation is x plus y plus 3z is equal to 4. अब देखो इसको डिटर्मिनेंट मेथड से करते हैं and then we'll apply the cases for no solution, unique solution and infinitely many solutions. So we are going to apply again Cramer's rule or determinant method, right? Now first of all let us write the determinant delta, which is the determinant of coefficients of x, y and z. Now coefficients of x are 2, 1, 1, y के coefficients है p, 2, 1 और z के coefficients 6, q, 3. Is it all right? So these are the coefficients. अब देखो अगर आप इसको किसी भी रो या कॉलम से एक्सपैंड कर सकते हो, ऑन एक्सपेंडिंग यू विल गेट दिस टू बी p - 2 into q - 3. ठीक है ना, किसी भी रो या कॉलम से एक्सपैंड कर लो, फैक्टराइज कर लो, यू विल गेट दिस. नाउ लेट अस राइट delta 1. You know that delta 1 is obtained when we replace first column by constants. That is coefficients of x को constant से replace करना है. Constants are 8, 5 and 4. तो फर्स्ट कॉलम विल बी 8, 5, 4. बाकी के दो कॉलम्स एज इट इज आएंगे p2, 1, 6, q3. ऑलराइट,
So what have we done? We have replaced coefficients of x by the constants. अब देखो अगर आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हो डेल्टा 1 की, it will come out to be p minus 2 into 4q minus 15. ये वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, किसी भी रो या कॉलम से एक्सपैंड करो, फैक्टराइज कर लो, you will get this. Now let us write the third determinant delta 2. इसमें देखो अब y के कोफिशिएंट्स रिप्लेस होंगे कांस्टेंट से. कांस्टेंट्स आर 8, 5 एंड 4. कोफिशिएंट ऑफ x एज इट इज आएंगे 2, 1, 1. कोफिशिएंट ऑफ z एज इट इज आएंगे 6, q एंड 3. इज इट ऑल राइट? तो इसमें हमने रिप्लेस किया है y के कोफिशिएंट्स को कांस्टेंट से. अगेन ऑन एक्सपेंडिंग बाय एनी रो और एनी कॉलम यू विल गेट दिस टू बी इक्वल टू 0. तो डेल्टा 2 की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 0. Is it okay? Let us proceed further now. Let us obtain now delta 3. अब हम निकालते हैं यहां पे डेल्टा 3. तो देखते हैं क्या आ रहा है. इसमें बेटा z के कोफिशिएंट्स को रिप्लेस करना है कांस्टेंट से. तो लास्ट कॉलम विल बिकम 8, 5, 4. x और y के कोफिशिएंट्स एज इट इज आएंगे. x के कोफिशिएंट्स वर 2, 1, 1 एंड कोफिशिएंट्स वर ऑफ y वर p2, 1. You know, these will come as it is. So we have replaced third column by the column of constants. On expanding this by any row or any column, this you will get as p minus 2. Is it all right? अब देखो हमारी क्या क्या वैल्यूज आ गई. Let me write here. डेल्टा की वैल्यू हमारी आई है p minus 2 into q minus 3. फिर हमने डेल्टा 1 की वैल्यू जो निकाली है that is p minus 2 into 4q minus 15. Then we have obtained delta 2 as 0 और delta 3 की वैल्यू आई है p minus 2. अब हम अलग अलग केसेस लेते हैं. सबसे पहले जैसे अगर हम बात करें, पार्ट 1 है आपका नो सॉल्यूशन. अब देखो नो सॉल्यूशन कब होता है. तो लेट अस टेक पार्ट 1 नो सॉल्यूशन. इसकी देखो कंडीशन क्या होती है. नो सॉल्यूशन के लिए डेल्टा शुड बी 0 एंड एटलीस्ट one of delta 1, delta 2, delta 3 is non-zero. इनमें से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए. सबसे पहले ये कंडीशन लो कि डेल्टा 0 है. डेल्टा 0 है तो इसका मतलब ये हो गया दिस इज डेल्टा, है ना, ये 0 होना चाहिए आपका. तो इसका मतलब p minus 2 into q minus 3 शुड बी 0. डेल्टा इक्वल टू अगर 0 है तो दैट मीन्स दो पॉसिबिलिटीज हैं, आइदर p इज 2 और q इज इक्वल टू 3. अब देखो अगर आप p इक्वल टू 2 लेते हो, इफ यू टेक दिस p इक्वल टू 2, तो उससे क्या होगा, p माइनस 2 फैक्टर डेल्टा 1 में है और p माइनस 2 डेल्टा 3 में है. तो अगर आपने p को 2 लिया तो डेल्टा 1 0 हो जाएगा, डेल्टा 2 ऑलरेडी 0 है और डेल्टा 3 भी 0 हो जाएगा. सो वी विल से इफ p इज इक्वल टू 2, then we have delta 1, look here, then we will have delta 1, delta 2, delta 3 all will be equal to 0. जबकि हमारी कंडीशन ये है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी नॉन जीरो. इसका मतलब ये वाला केस क्या हो गया, रिजेक्ट. सो दैट मीन्स दूसरा केस लेना होगा जब Q3 है. Q3 है और P2 नहीं होना चाहिए, ये भी कहना पड़ेगा, क्योंकि अगर P2 हो गया बेटा तो हमने देखा सारे के सारे डिटर्मिनेंट्स डेल्टा 1, डेल्टा 3, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 0 बन रहे हैं, जबकि इनमें से कम एक का नॉन जीरो होना जरूरी है. सो दैट मीन्स वी गेट कि नो सॉल्यूशन के लिए हमारी कंडीशन ये आ गई कि Q इक्वल टू 3 एंड P शुड नॉट बी इक्वल टू 2. तो इससे आपका डेल्टा तो 0 हो जाएगा, पर डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में से कम एक क्या हो जाएगा, नॉन जीरो, क्योंकि अगर P2 नहीं है तो ऑब्वियसली डेल्टा 3 तो नॉन जीरो हो ही जाएगा. इज इट ऑल राइट? सो देयरफॉर दिस कंडीशन विल गिव अस नो सॉल्यूशन. अब हम पार्ट 2 लेते हैं इसका, जिसमें आपको पूछा है यूनिक सॉल्यूशन. फिर आखिरी में लेंगे बेटा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. नाउ आई एम टेकिंग पार्ट 2 दैट देयर शुड बी यूनिक सॉल्यूशन. इसकी कंडीशन सबसे ज़्यादा सिंपल होती है, क्योंकि ये कंडीशन सिर्फ डेल्टा पे होती है कि डेल्टा शुड नॉट बी इक्वल टू 0. हमने डेल्टा लिया है p माइनस 2 इंटू क्यू माइनस 3. दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0.
इसका मतलब हुआ कि p माइनस 2 भी नॉन जीरो होना चाहिए बेटा, एंड q माइनस 3 शुड ऑल्सो बी नॉन जीरो, क्योंकि अगर एक भी जीरो हो गया देखो तो प्रोडक्ट को जीरो बना देगा. तो दैट मीन्स p शुड नॉट बी इक्वल टू 2 एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 3. दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन. बाकी p और q कोई भी वैल्यूज लें, वी विल ऑलवेज गेट यूनिक सोल्यूशन. और आखिरी लेते हैं पार्ट 3, वेयर वी हैव टू फाइंड infinitely many solutions. So let us take infinitely many solutions. ये देखो कब हो जाएंगे infinitely many solutions, क्या कंडीशन होती है? When delta, delta 1, delta 2, delta 3 all will be equal to 0. देखो हमने यहाँ पे पहले कहा था कि अगर हमारे पास P2 है, ये देखो अगर P2 है तो डेल्टा तो जीरो था ही, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 भी जीरो बन रहे थे. तो इसका मतलब जब P2 होगा बेटा तो सारे डिटर्मिनेंट जीरो बन जाएंगे, तो हमें मिलेगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. तो उसके लिए P की वैल्यू होनी चाहिए 2. सो दिस इज द थर्ड कंडीशन. ऑलराइट, सो वी हैव ऑब्टेन्ड ऑल द कंडीशंस विच वर रिक्वायर्ड. तो यूनिक सोल्यूशन के लिए पहले नो सोल्यूशन था, तो यूनिक नो सोल्यूशन के लिए हमारी कंडीशन ये है कि Q3 होना चाहिए, P नॉट इक्वल टू 2. यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन है P ना तो 2 होना चाहिए और ना ही बेटा Q होना चाहिए 3. Is it all right? And for infinitely many solutions, we should have value of P to be equal to Q. All right? So this is a very good question which involves all the 3 cases. अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8. Now it says for what value of k the following system of equations possess a non-trivial solution. ठीक है, तो non-trivial solution होना चाहिए over the set of rationals. Equations हैं आपकी ये दी हुई. अब let us find the solution of this question. सबसे पहले हम इक्वेशंस लिख लेते हैं. फर्स्ट इक्वेशन गिवन टू अस इज x प्लस के वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 0. सेकेंड इक्वेशन इज 3x प्लस के वाई एंड माइनस 11z इज इक्वल टू 0. थर्ड इक्वेशन इज 2x प्लस 3y एंड माइनस 10z इज इक्वल टू 0. आप देख रहे हो बेटा ये सारे जीरोज हैं और बाकी हर टर्म की डिग्री 1 है, तो दिस इज होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन. राइट, दिस इज होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. तो उसमें अगर आपको दिया है कि सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, मतलब नॉन जीरो सॉल्यूशंस, मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं, तो कंडीशन होती है कि डेल्टा शुड बी इक्वल टू 0. डेल्टा होता है x के कोफिशिएंट्स, y के कोफिशिएंट्स, z के कोफिशिएंट से बना डिटर्मिनेंट. सो विच डिटर्मिनेंट? लेट अस टेक कोफिशिएंट्स ऑफ x. वी हैव 1, 3, 2. ऑलराइट, ये देखो x के कोफिशिएंट्स आर 1, 3, 2, देन y के k 3, सो k 3. ऑलराइट, फिर z के कोफिशिएंट्स लो 3 माइनस 11 माइनस 10, दिस शुड बी इक्वल टू 0. अब इसको सॉल्व करते हैं और हम देखते हैं k की वैल्यू क्या आ रही है. इसको आप बेटा किसी भी रो या कॉलम से एक्सपैंड कर सकते हो. ऑलराइट, यू कैन एक्सपैंड बाय एनी रो और एनी कॉलम. लेट अस एक्सपैंड बाय फर्स्ट रो. इज इट ऑलराइट? फर्स्ट रो से अगर आप एक्सपैंड कर रहे हो तो सॉल्व करके k की वैल्यू बेटा आपकी आएगी 15/2. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ k. तो ओवर द सेट ऑफ रैशनल मतलब कि k रैशनल नंबर है, तो बिल्कुल 15/2 हमारा रैशनल नंबर है. तो पहला पार्ट ये था फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k सिस्टम पोजेसेस अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो वो वैल्यू आ चुकी है 15/2 विच यू कैन ऑब्टेन बाय सॉल्विंग दिस डिटर्मिनेंट बाय एनी रो और एनी कॉलम. फिर आपको क्या पूछा है? फॉर दैट वैल्यू ऑफ k फाइंड द सॉल्यूशन. अब हम एक काम करते हैं, जो हमने k की वैल्यू निकाली है वो इन दोनों इक्वेशंस में पुट कर देते हैं. थर्ड इक्वेशन में k हमारा नहीं है, तो k इज 15/2, तो 15/2 लिख के हम एलसीएम ले लें. तो अब देखो इक्वेशंस क्या बनी. सो फॉर k इक्वल टू 15/2 द 3 इक्वेशंस आर. फर्स्ट इक्वेशन आपकी बनेगी बेटा 2x प्लस 15y प्लस 6z इज इक्वल टू 0. फिर k की वैल्यू 15/2 सेकेंड इक्वेशन में पुट करके एलसीएम लेंगे
तो वो आएगी 6x प्लस 15y माइनस 22z इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन आपको कंप्लीटली ऑलरेडी दी हुई थी, विच वॉज 2x प्लस 3y माइनस 10z इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि दिस सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, मतलब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस हैं। तो उन्होंने कहा है वो सॉल्यूशंस निकालो। अब देखो किसी भी सिस्टम में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कैसे निकाले जाते हैं, चाहे वो होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस। उसके लिए हम एक काम करते हैं कि z x y z में से किसी भी एक वेरिएबल को आप कोई कांस्टेंट अज्यूम कर लो। तो व्हाट वी कैन डू इज लेट अस अज्यूम सपोज z be equal to lambda where lambda is any real number. Is it all right? अब आप देखो फर्स्ट टू इक्वेशंस में जैसे अगर हम z के बदले में लैम्डा ले लें तो फर्स्ट इक्वेशन, जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है और ये थर्ड है बेटा, तो फर्स्ट इक्वेशन इंप्लाइज 2x प्लस 15y is equal to minus 6 lambda and second equation will give you 6x plus 15y is equal to 22 lambda। दो इक्वेशंस लेते हैं। अब देखो इनमें दो अननोन्स हैं, सॉल्व करो x और y निकाल लो, इनको चाहो तो सब्ट्रैक्ट कर लो। तो 6x minus 2x, what we are doing? We are doing 2 minus 1. तो 4x will be equal to 28 lambda. That means x is coming out to be 7 lambda. Is it all right? ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं मान लो 1 में to obtain y. So we have 14 lambda plus 15y is equal to minus 6 lambda. That means we are getting 15y is equal to minus 20 lambda. तो y की वैल्यू आ गई minus 4 upon 3 lambda. Is it okay? और देखो z तो हमने lambda लिया ही था, तो एक तरह से infinitely many solutions देखो क्या आएंगे। तो if lambda is any real number, we have x is equal to 7 lambda, y is minus 4 upon 3 lambda. Is it okay? And z will be equal to lambda. तो ये हमारे infinitely many solutions आए हैं। ये infinitely many क्यों है बेटा? क्योंकि lambda कोई भी वैल्यू ले सकता है। lambda can take any value. Is it all right? For example देखो, जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे for example मैंने lambda को 1 ले लिया, तो मेरे पास क्या आ रहा है? x is equal to 7, y equal to minus 4 by 3 and z is equal to 1. आप पुट करके देख लो, तीनों इक्वेशंस हमारी सेटिस्फाई होंगी। इवन आप ये भी चेक कर सकते हो, देखो जैसे z लैम्डा है, x है माइनस 7 लैम्डा, y है माइनस 4 बाय 3 लैम्डा, ये तीनों वैल्यूज हमारी थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। पुट करके देखते हैं, ये देखो, लुक एट, लेट्स पुट इन द थर्ड इक्वेशन। 2 इंटू एक्स था 7 लैम्डा, लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूं मैं ताकि आपको दिखे कि जो हमने वैल्यूज निकाली हैं x और y की, दो इक्वेशंस को यूज करके दे विल सेटिस्फाई द थर्ड इक्वेशन अगर हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। तो यहां पे हो गया +3, ये देखो, देन वी हैव +3, y की वैल्यू कितनी है देखो, -4 by 3 लैम्डा, सो वी हैव -4 by 3 लैम्डा, ठीक है, और -10z मतलब -10 लैम्डा। देखो कितना आ रहा है ये, दिस इज इक्वल टू 14 लैम्डा, फिर -4 लैम्डा -10 लैम्डा, यू कैन सी इट इज इक्वल टू 0 विच इज राइट हैंड साइड। सो डू यू सी, ये जो हम वैल्यूज ले रहे हैं बेटा, ये आपकी थर्ड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करती हैं। तो जैसे मैंने बताया, अगर लैम्डा को 1 ले रहे हो तो ये वैल्यूज आपकी तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी। और देखो, जैसे अगर मान लो आपने लैम्डा को 3 ले लिया, तो आपके पास क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 21, y इक्वल टू -4 एंड z इज इक्वल टू 3। तो जितनी भी ये वैल्यूज आएंगी इनफाइनाइटली मेनी, x को आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, इवन अंडर रूट में भी ले सकते हो। रियल में आपको पता है रैशनल एंड नॉन रैशनल, इररेशनल बोथ आर इंक्लूडेड। यू कैन टेक लैम्डा एज √2 ऑल्सो। तो जितनी भी आपके पास ये ट्रिपलेट्स आएंगे x y z के, वो सारे के सारे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस विल सेटिस्फाई ऑल दीज 3 इक्वेशंस, ठीक है। तो वो सारे के सारे इन तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। तो जब भी आपके पास किसी सिस्टम में, चाहे वो होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है, अगर आपके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आते हैं और आपको उनको निकालने के लिए बोला जाता है, तो आप तीनों वेरिएबल्स में से किसी भी एक को लैम्डा मान लो और बाकी दोनों को लैम्डा की टर्म्स में निकाल लो।
इज इट ऑल राइट? दो इक्वेशंस यूज करो और जो भी आंसर आएगा वो तीनों इक्वेशंस तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई जरूर करेगा। इज इट ऑल राइट? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अब आप देखो, इसमें गौर से देखना जरा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड वी आर गिवन 3 इक्वेशंस, लेकिन आप ऑब्जर्व कर रहे हो इसमें वेरिएबल्स 2 ही हैं, x और y। आपको 3 इक्वेशंस दी हैं और वेरिएबल्स 2 ही हैं। तो देखो, एक तो आप ऐसे कर सकते हो, लेट अस सी द सॉल्यूशन। आई विल टेल यू वन मेथड ओवर हियर। जैसे हम तीसरा वेरिएबल z मान लें, तो z एक तरह से नहीं है, तो मतलब उसका कोफिशिएंट तीनों इक्वेशंस में 0 है। तो पहली इक्वेशन हो गई x प्लस वाई प्लस 0 इंटू जेड इज इक्वल टू 3। सेकेंड इक्वेशन देखो क्या बनी, 1 प्लस लैम्डा इंटू एक्स प्लस 2 प्लस लैम्डा इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड इज इक्वल टू 8। थर्ड इक्वेशन इज x माइनस 1 प्लस लैम्डा इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 प्लस लैम्डा। एक तरह से आपके पास 3 इक्वेशंस हो गई और 3 अननोन्स हो गए। आपको कहा है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है हैज अ सॉल्यूशन। तो वी आर गिवन दैट सिस्टम इज कंसिस्टेंट। इज इट ऑल राइट? अब देखो, कंसिस्टेंट है या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मेनी। तो हम अगर डेल्टा निकालें जो कि एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स हैं, तो वी विल हैव एक्स के कोफिशिएंट्स, तो देखो ये हो जाएंगे, ठीक है ना। वी विल हैव 1 2 प्लस लैम्डा माइनस 1 प्लस लैम्डा। जेड के कोफिशिएंट 0 हैं, तो इसका मतलब डेल्टा की वैल्यू 0 हो गई। अब डेल्टा 0 है तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपको पता है कंडीशन इज डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। तो अगर डेल्टा 0 है तो देयरफॉर सिस्टम विल बी कंसिस्टेंट इफ डेल्टा 0 होने के साथ साथ डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 ऑल आर इक्वल टू 0। उस केस में हमें मिल जाएंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इज इट ऑल राइट? सॉरी, यहां पे ये कंसिस्टेंट है, तो सिस्टम विल बी कंसिस्टेंट। ऑल राइट, कंसिस्टेंट 2 ही केसेस में होता है ना, या यूनिक होगा या इनफाइनाइटली मेनी। यूनिक हो नहीं सकता क्योंकि डेल्टा 0 आ गया। अब आप देखो, इसमें डेल्टा 1 भी 0 आएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट कॉलम तो आपका z के कोफिशिएंट्स होंगे ना। इसमें पहले में क्या आएंगे, देखो x के कोफिशिएंट्स, फिर y के कोफिशिएंट्स, पहले में कांस्टेंट्स आएंगे, सॉरी, है ना। डेल्टा 1 में आप क्या करते हो, कांस्टेंट से रिप्लेस करते हो, जो कि आपके ये हैं। पर क्योंकि इसमें लास्ट कॉलम में z के कोफिशिएंट्स हैं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो 0 बनेगी। इसी तरह डेल्टा 2 में फर्स्ट कॉलम जो होगा वो आपका क्या होगा बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x। सेकेंड कॉलम होगा कांस्टेंट्स का। थर्ड कॉलम कोफिशिएंट ऑफ z होगा, वो 0 है, तो डेल्टा 2 विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। अब देखो, हम डेल्टा 3 लेते हैं जिसमें z के कोफिशिएंट्स रिप्लेस होंगे कांस्टेंट से। तो x के कोफिशिएंट्स थे हमारे, ये देखो क्या थे, सॉरी यहाँ पे ये 1 आएगा बेटा। x का कोफिशिएंट कितना है, 1। इज इट ऑल राइट? दिस विल बी इक्वल टू 1। x का कोफिशिएंट था ना 1। तो अब देखो, x का कोफिशिएंट एज इट इज आएगा, y का कोफिशिएंट एज इट इज आएगा, जो z के कोफिशिएंट हैं वो इन कांस्टेंट से रिप्लेस हो जाएंगे। तो लेट मी राइट व्हाट आर वी गेटिंग। सो कोफिशिएंट्स ऑफ x इन द 3 इक्वेशंस आर 1 1 प्लस लैम्डा 1। y के कोफिशिएंट्स हैं 1 2 प्लस लैम्डा, देन माइनस 1 प्लस लैम्डा। और देखो, कांस्टेंट्स थे 3 8 और माइनस ऑफ 2 प्लस लैम्डा, तो दिस डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। तो अब देखो, हमने कहा कि सिस्टम कंसिस्टेंट तब होगा अगर डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 0 हो जाए। तो डेल्टा ऑलरेडी 0 है, डेल्टा 1 भी ऑलरेडी 0 है, डेल्टा 2 भी ऑलरेडी 0 है, क्योंकि z के कोफिशिएंट 0 हैं। तो अब कंडीशन सिर्फ ये है कि इसको 0 होना है। तो बस इसको एक्सपैंड करो और डेल्टा की वैल्यू निकाल लो। आप चाहो तो ट्रांसफॉर्मेशन भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लाइक लुक हियर, जैसे हम इन दोनों टर्म्स को क्या बना सकते हैं, 0। तो यू कैन अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन, C2 गोज टू C2 माइनस C1 एंड C3 गोज टू C3 माइनस 3 टाइम्स C1। तो इसमें क्या होगा, आपका कॉलम 1 देखो वही रहेगा। सो लेट अस राइट, कॉलम 1 इज 1 1 प्लस लैम्डा 1।
C2 minus C1 करो, we will have 0, then 1, then minus lambda minus 2. ये अप्लाई करो, C3 goes to C3 minus 3 C1, तो this will be 0. ये टर्म आ जाएगी 5 minus 3 lambda और लास्ट टर्म आ जाएगी minus lambda minus 5. This will be equal to 0. अब देखो रो 1 में आपके पास आ चुके हैं 2 zeros, तो लेट अस एक्सपैंड बाय रो 1. तो प्लस के साथ लेना, फिर माइनस, फिर प्लस, आगे तो 0 ही है. तो लेट अस नाउ एक्सपैंड बाय रो 1. तो रो 1 से एक्सपैंड करो, 1 इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस. तो सॉल्व करके आपके पास इक्वेशन आ जाएगी बेटा 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा एंड माइनस 5 इज इक्वल टू 0. मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, आपके पास फैक्टर्स बनेंगे 3 लैम्डा प्लस 5 इंटू लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0. That will give you two values of lambda, minus 5 by 3 and 1. Is it all right? So these are the values of lambda for which the system of equations will be consistent. तो आपने देखा हमने क्या किया कि हमारे पास 3 इक्वेशंस थी और अननोन्स 2 थे, तो हमने तीसरा अननोन इंट्रोड्यूस कर दिया बाय टेकिंग इट्स कोफिशिएंट टू बी 0. तो हमारे पास 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल्स आ गए, तो उनमें डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2 0 बन गए क्योंकि z के कोफिशिएंट 0 थे. तो डेल्टा क्योंकि 0 है तो सिस्टम में यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो सकता. अब हमें कहा है कि अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है तो मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस ही पॉसिबल हैं. उनके लिए सारे डिटर्मिनेंट 0 होने चाहिए. क्योंकि z का कोफिशिएंट 0 था तो डेल्टा 1 ऑलरेडी 0 है, डेल्टा 2 0 है, तो डेल्टा 3 जो हमारा आया जिसमें लास्ट कॉलम था कांस्टेंट्स का, तो उसको 0 पुट करो. लैम्डा की आपके पास 2 वैल्यूज आ जाएंगी, 5 minus 5 by 3 and 1. So this was question number 9. All right? तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया, स्पेशली जिसमें हमने 3 इक्वेशंस और 2 वेरिएबल्स लिए. So as you have seen beta, in this lecture we did subjective questions basically on solving a system of linear equations. तो मैट्रिक्स मेथड से भी पहले हमने देखा और फिर डिटर्मिनेंट मेथड से देखा और अलग अलग केसेस हमने लिए जिनमें वो भी केसेस इन्वॉल्व थे जिनमें आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होमोजेनियस था. राइट? सो इन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करो. प्लीज प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस फ्रॉम दिस, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको इस टॉपिक में और क्लैरिटी आती जाएगी. इज इट ऑल राइट? इस लेक्चर में इतना ही करते हैं. Rest we will continue in the next one. All right? I hope beta you are enjoying the benefit of our courses. Thank you and bye-bye.